Assalamualaikum and good morning to all of you. Hope that you are doing good and fine and enjoying the best of your health at your homes by the grace of Almighty Allah. Myself, Ms. Javeria Kohar, your science teacher. Okay, students, in the previous lecture I have given you some questions to solve. Now let's open your books. Open your chapter, open page number 21. Okay, open page number 21. There are few questions of test yourself. We have studied about the seeds and fruits, okay, and we have also read about the germination. I have given you few questions of test yourself. I have told you to find out the answer by yourself. Okay, hope so that you have find the answers of these questions, but let me tell you the answer of these questions so that you can tally your answers, and if there is any mistake then do correct your answer. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉपी वर्क भी बताऊंगी कि कौन कौन सा आपने कॉपी वर्क में काम उतारना है, ठीक है. सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस द आंसर फर्स्ट. आफ्टर दैट आई विल we will do some reading, and after that I will tell you about the copy work. Okay, now start the lecture. After fertilization, what happens to the flower? फ्लावर के साथ क्या होता है? देखिए, मैं आपको पहले वर्बली भी बता देती हूँ, फिर मैं आपको आंसर शो भी कर दूँगी रिटन फॉर्म में. फ्लावर्स विद मोस्ट ऑफ द फ्लावर वेदर एंड डाई. ज़्यादातर फ्लावर क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं या फिर डाई आउट होकर मतलब ख़त्म हो जाते हैं फ्लावर्स. ओके, व्हाट हैपन टू द ओव्यूल? ओव्यूल के साथ क्या होता है? द फर्टिलाइज ओव्यूल बिकम्स अ सीड. ओव्यूल क्या हो जाता है? सीड बन जाता है. एंड व्हाट अबाउट द वॉल ऑफ द ओवरी? ओवरी बिकम द फ्रूट विद द सीड इनसाइड इट. ओके, वॉल ऑफ ओवरी क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू fruit. Okay, ovule become the seed and flowers are mostly die out or wither. Okay, describe the structure of the seed. Structure क्या है seed का? Here we have the answer of these. Let's have a look. After fertilization, what happens to flower ovule? The flower wither and dies after fertilization. Okay, ovule, the fertilized ovule grows inside the ovary until it develops into a seed. ठीक है, यानी कि फर्टिलाइज ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड बन जाता है. ठीक है. द थर्ड वन क्या था आपका? द ओवरी वॉल. ओके, द ओवरी बिकम फ्रूट विद सीड इनसाइड इट. ओके, ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड एंड ऑल्सो ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द सीड. ओके, हेयर इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीड. दिस इज द डायग्राम. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड. हेयर इज द डिस्क्रिप्शन. A seed contains a tiny embryo plant together with a large food store. Surrounding the seed is a tough seed coat which protects it. The embryo plant consists of an embryo root and an embryo shoot. Okay, this is the structure of seed. Okay, now come to the next question. Your next question is, what is the biggest part of a seed? मतलब biggest part कौन सा है seed का? Suggest a reason for this. इसके लिए reason suggest करें. Here is the answer. The food store is the biggest part of the seed. Okay, food store क्या है? biggest part of the seed है. This is needed to provide food for growing plant until it can make its own food by photosynthesis. वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे ग्रोइंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करनी होती है until कि वो खुद इस काबिल हो जाए कि वो अपनी फूड बना सके. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन रीज़न वाई इट इज़ गुड टू हैव सीड्स स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. एक रीज़न बता दें कि जो सीड्स हैं उसे स्कैटर्ड क्यों होना चाहिए पेरेंट्स प्लांट से. वो इसलिए सो दैट इट कुड नॉट बी क्राउडेड. ओके, क्राउडेड नहीं हो, क्योंकि अगर क्राउडेड होंगे प्लांट तो वो वेल ग्रोथ उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती. ठीक है. नेक्स्ट, गिव 3 वेज इन विच सीड कैन बी स्कैटर्ड. 3 वेज बताएं जिसके ज़रिए सीड स्कैटर्ड होते हैं. हियर इज़ द सीड कैन बी स्कैटर्ड बाय विंड, बाय एनिमल्स एंड बाय एक्सप्लोजन. ओके, व्हेन इट ड्राइज आउट, पॉड्स एक्सप्लोड करते हैं, ब्रस्ट करते हैं, तो बाय एक्सप्लोजन. ओके,
These are the 3 reasons. Now turn the page. Here is test yourself on page number 22. Question number 1. What does a seed need in order to grow? Seed को grow करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? Here is the answer. Seeds need water, oxygen and a suitable temperature before they will begins to grow. Okay, means seed need water, oxygen and suitable temperature to grow. Okay. Describe what happen when a seed germinate. जब seed germinate होता है तो describe करें क्या होता है. Here is the answer. Water is taken into the seed and the roots begins to grow. Water seed के अंदर जाता है और roots उगना शुरू हो जाती हैं. As more water is taken in by the growing root और root system, और जैसे जैसे ज़्यादा पानी root system लेता जाता है, the embryo shoots start to grow. Embryo shoot उगना शुरू हो जाती हैं. as new leaves make its own food. As new leaves develops, the young plant can start to make its own food. यानी कि डेवलप करते हैं, न्यू लीव्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी फूड खुद ही बनाना स्टार्ट कर देता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम? कहाँ से एनर्जी लेता है ग्रोइंग एम्ब्रियो? द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम लार्ज फूड स्टोर. ठीक है, फूड स्टोर से लेता है. ओके, एक्सप्लेन वाई सीड डू नॉट जर्मिनेट इन पैकेट्स बिकॉज दे इट इज़ टू ड्राई. ओके, पैकेट्स में इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. ये सारा प्रीवियस लेक्चर में था. आई हैव टोल्ड यू एंड डिस्कस द आंसर विद यू. मैंने आपको आंसर बताए और आपसे डिस्कस किए एंड आपको डिस्क्राइब भी किए. नाउ कम टूवर्ड्स आवर टुडेज रीडिंग. आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ क्लोनिंग इन प्लांट्स. प्लांट्स में cloning in plants. So first of all question is what is clones? Okay, clones are genetically identical organism यानी कि जिनके जीन्स सेम हो, जेनेटिकली वो सेम हो, आइडेंटिकल, बिल्कुल डिट्टो. ओके, उसे क्या कहते हैं? क्लॉन्स कहते हैं. क्लोनिंग कैन अकर नेचुरली इन प्लांट्स. प्लांट में कुदरती तौर पर क्लोनिंग होती है. टुडेज क्लोनिंग इज़ अ हाई टेक बिजनेस. आजकल जो है क्लोनिंग बहुत बड़ा बिजनेस है. ठीक है, अ लॉट ऑफ कमर्शियल प्लांट ग्रोअर्स यूज़ दिस टेक्निक. बहुत सारे कमर्शियल जो प्लांट कमर्शियली तौर पर, यानी कि कमर्शियल प्लांट ग्रोइंग का मतलब है जो आप कमर्शियली सोल्ड आउट वगैरह करते हो प्लांट. ठीक है, प्लांट ग्रोअर जो हैं वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि वो थोड़े से अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स तैयार कर सकें. ठीक है, नेचुरल क्लॉन, कुदरती तौर पे जो क्लॉन्स बनते हैं. ओके, मैनी प्लांट्स एज वेल एज बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सीड्स. बहुत सारे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करने के साथ साथ, यानी कि सीड प्रोड्यूस करने के काबिल भी होते हैं, आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग न्यू पार्ट्स विच कैन लिव एज अ सेपरेट प्लांट. उसके साथ साथ वो इस काबिल भी होते हैं कि वो न्यू पार्ट्स को डेवलप करें जो कि सेपरेट प्लांट के तौर पर सर्वाइव कर सकते हैं. यानी कि अगर उसका कुछ पार्ट अगर सेपरेट करके लगा दिया जाए तो वो सेपरेट प्लांट की फॉर्म ले लेता है. दिस इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. बिकॉज क्योंकि नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है. द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट. जो न्यू प्लांट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने जेनेटिक प्लांट, यानी कि जिस प्लांट का वो पार्ट लगाया है. लाइक आप देखते हो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसकी जस्ट कटिंग लगा दी जाती है, उसमें कोई सीड वगैरह नहीं लगाया जाता, उसकी कोई भी एक पार्ट लिया जाता है और उसको लगा दिया जाता है. जैसे आपने एलोवेरा का प्लांट देखा होगा, उसका लीफ कट करके अगर लगा दो तो वो भी एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. ठीक है, लीफ कटिंग की फॉर्म में. तो वो क्या है, कोई सीड वगैरह नहीं है, उसमें गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जस्ट आपने कटिंग लगाई है. ठीक है, तो वो क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया. हियर इज़ द डायग्राम विच इज़ शोइंग स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज सेंड आउट स्पेशल स्टेम्स कॉल्ड रनर्स. स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो स्पेशल स्टेम्स सेंड आउट निकालती हैं, इसे रनर कहा जाता है. डेट स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर स्प्रेड होती है. न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो एट द टिप ऑफ दिस स्टेम्स, और इन स्टेम्स की टिप पर नए स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ग्रो करते हैं. देखिए यहाँ पर किसी भी
पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट स्ट्रॉबेरी ने क्या किया, अपनी स्टेम सेंड आउट की, ग्राउंड पर वो फैली और जहाँ पर वो गई और उसके टिप्स जहाँ पर है वहाँ पर नया प्लांट ग्रो हो गया. नाउ हियर इज़ अनदर डायग्राम एंड एग्जाम्पल. सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम swollen with stored food. ओके, सम स्टेम्स, ये हेयर इज़ द डायग्राम. आपका जो पोटैटो है इसके अंडरग्राउंड ही उसके स्टेम्स उगाते हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक, और वो स्वेल हो जाते हैं स्टोर्ड फूड की वजह से. द स्वेलिंग इज़ द पोटैटो और ट्यूबर. ये स्वेलिंग को पोटैटो या ट्यूबर कहा जाता है. इफ़ अ ट्यूबर इज़ प्लांटेड, अगर इस ट्यूबर को प्लांट किया जाए यानी कि दबा दिया जाए, ठीक है, इनको हटा के न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स, यानी कि ये इन बर्ड्स से न्यू प्लांट्स उगाएंगे. इन बर्ड्स को आइस भी कहा जाता है. ओके, अगर इसको दबा दिया जाए, देखें कितने प्लांट्स बनेंगे, जितने भी ट्यूबर्स हैं इतने ही एक पोटैटो से प्लांट बन जाएंगे. समझ में आ रही है? देयर इज़ नो पॉलिनेशन इन्वॉल्व, नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व. ओके, प्लांट इटसेल्फ स्टेम्स ग्रो कर रहा है और एक नया प्लांट बना रहा है. हियर इज अनदर एग्जाम्पल. ओके, अनियन, आप सबने अनियन देखा होगा, ठीक है, आपके घरों में भी मौजूद है और समटाइम आप देखते इस तरह उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन प्लांट्स उगाते हैं. Bulbs such as onion are large underground buds with swollen leaves full of food. Each year new bulb grow inside the old one. ओके, क्या होता है बल्ब सच एज अनियन जिसे बल्ब भी कहा जाता है, लार्ज अंडरग्राउंड बर्ड्स हैं विद स्वैलन लीफ फुल ऑफ फूड. मीन्स आप इसे फुल ऑफ फूड होते हैं, ये हर साल क्या होता है नए बल्ब ग्रो करते हैं. ये देखिए, इसकी ग्रोइंग को बल्ब कहा जाता है, इसकी ग्रोइंग को ट्यूबर कहा जाता है. तो ये क्या करते हैं, पुराने बल्ब से नए बल्ब यानी कि जनरेट होते हैं और न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. आप इस अनियन को अगर दबा देंगे तो अनियन का प्लांट निकल आएगा. Humans have grown plant asexually for hundreds of years by cutting pieces of plants they like. ओके, ह्यूमन ने प्लांट ग्रो किए एसेक्सुअली हज़ारों सालों से. किस तरह? बाय कटिंग पीसेस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का पीस कट करके, दे लाइक, जिस प्लांट का पीस उन्हें पसंद, जो प्लांट उन्हें पसंद है उसका पीस कट करके उसे क्या कर देते हैं, ग्रो करते हैं. एंड ग्रोइंग दैम इनटू न्यू प्लांट, और उसका एक नया प्लांट बना देते हैं. दिस प्रोसीजर इज़ नॉन एज प्रोपोगेशन. इस तरीके को प्रोपोगेशन कहा जाता है. द न्यू प्लांट आर कॉल्ड कटिंग, और न्यू प्लांट को कटिंग कहा जाता है. देखिए, एक पार्ट कट कर लिया, उसे पानी में डाल दिया, थोड़े देर के बाद उसके रूट्स आ गए और उसे आपने अगेन सॉइल में लगा दिया. This geranium cutting was cut from the stem of the larger plant. ये कटिंग जो है larger plant के stem से ली गई है. Some plant can be grown from leaf cutting. कुछ plant leaf cutting से भी grow होते हैं. Apple tree cutting grows by being grafted onto the stem of the healthy plant. यानी कि एप्पल कटिंग को क्या, एप्पल ट्रीज कटिंग को लेकर grow by being grafting, यानी कि उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है. हेल्दी प्लांट के ऊपर उसे लगा दिया जाता है, ठीक है, ग्राफ्टिंग की जाती है हेल्दी प्लांट पर, ठीक है. Now turn the page. Micropropagation and tissue culture. Micropropagation means growing new plant from very small microscopic pieces. यानी कि बहुत छोटे छोटे pieces से new plant grow करना. Some plant can be grown from a tiny piece of plant containing only one bud. यानी कि सिर्फ एक bud भी हो उससे भी grow कर जाते हैं some plants. Okay. A stem is chopped into lot of tiny pieces. एक स्टेम लेकर उसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया जाता है, काट लिया जाता है. ईच विद अ बर्ड ऑन इट. ईच, ये देखें बर्ड, हर एक के ऊपर एक बर्ड होता है. दिस पीसेस आर स्टेरिलाइज्ड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड पुट इनटू द कंटेनर. उसे स्टेरिलाइज किया जाता है और उसे कंटेनर में रख दिया जाता है. द कंटेनर हैज़ अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरीथिंग द प्लांट नीड फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ. और उस कंटेनर में क्या होता है, प्लांट की नीड की सारी मीडियम, यानी कि प्लांट की ग्रोथ का मीडियम होता है. उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर हर कंडीशन, वाटर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, सब कुछ प्रोवाइड होता है. इट ऑल्सो कंटेन रूटिंग हार्मोन्स टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स. और उसमें एक चीज़ एडिशनल होती है, उसमें रूटिंग हार्मोन डाले जाते हैं ताकि रूट्स उसकी फास्टली ग्रो कर सकें. ईच पीस ऑफ स्टेम ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट विद रूट्स. यानी कि हर पीस एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है विद रूट्स, यानी कि उस रूट्स के साथ. द न्यू प्लांट्स आर केप्ट इन द ग्रीन हाउस अंटिल दे आर बिग इनफ टू सर्वाइव. यानी कि वो सर्वाइव कर जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आराम से वो सर्वाइव कर जाए, तब तक उसे ग्रीन हाउस में रखा जाता है. ग्रीन हाउस क्या है,
इन्वायरमेंट बना होता है, वहाँ पर प्लांट्स को एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है जिसमें वो फास्टली ग्रो करते हैं। इन टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट्स आर ग्रो फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेल टिश्यूज़ इंस्टेड ऑफ फ्रॉम अ बर्ड। यानी कि टिश्यू कल्चर में क्या है कि प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं ओनली फ्यू सेल, यानी कि टिश्यू से ग्रो करते हैं, ना कि बर्ड से। ओके, दिस टेक्निक इज़ वेरी क्विक। ये टेक्निक बहुत तेज़ी से वर्क करती है एंड डज़ नॉट टेक अप मच स्पेस, और ज़्यादा जगह भी नहीं लेती। प्लांट ग्रोअर कैन यूज़ इट ऑल ईयर राउंड इन अ ग्रीन हाउस टू प्रोड्यूस हेल्दी डिजीज़ फ्री प्लांट। यानी कि पूरा साल प्लांट ग्रोअर जो हैं, जो प्लांट उगाते हैं, से पूरा साल ग्रीन हाउस में हेल्दी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जो डिज़ीज़ फ्री, यानी कि किसी भी किस्म का डिजीज़ प्लांट को नहीं होता। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट आर ग्रोन अंटिल दिस यूजिंग दिस टेक्निक। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट यानी कि आर्टिफिशियली ये प्लांट ग्रो किए जाते हैं यूजिंग इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। द ओनली प्रॉब्लम इस टेक्निक के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन इन क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। सो इफ़ वन प्लांट गेट अ डिजीज़, अगर एक प्लांट में डिजीज़ है, इट इज़ वेरी लाइकली दैट ऑल अदर क्लोन्स विल गेट इट एज वेल। यानी कि उससे जितने भी क्लोन बनेंगे उन सब में भी वो डिज़ीज़ पाए जाने के 99% चांसेस हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है इन नेचर में प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। यानी कि यही वजह है कि नेचर में प्लांट सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। लाइक उसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते, जबकि जो क्लोनिंग का प्रोसेस है इसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के 99% चांसेस होते हैं। हियर इज़ क्वेश्चंस to do. What is clone? Clone क्या है? Explain how sexual reproduction is different from asexual reproduction. Sexual reproduction asexual reproduction से कैसे different है? What is runner? Runner क्या है? Tuber क्या है? और bulb क्या है? ठीक है. What is cutting? Cutting क्या है? Where are cutting taken from? Cutting कहाँ से ली जाती है? What is micropropagation? Micropropagation क्या है? Explain why condition of our micropropagation must be sterile. स्टेराइल। ओके, सॉरी टंग ट्विस्ट होगी मेरी। ओके, एक्सप्लेन करें कंडीशन जो है माइक्रो प्रोपोगेशन में उसे स्टेराइल क्यों करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज़ ग्रोथ मीडियम? ग्रोथ मीडियम क्या है? व्हाई डज अ ग्रोथ मीडियम कंटेन हार्मोन? ग्रोथ मीडियम में हार्मोन क्यों होते हैं? गिव टू एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर के 2 एडवांटेजेस बताएं और उसका एक क्लोनिंग का एक बिग डिसएडवांटेज बताएं। These are the questions which we will discuss in next lecture. Okay student, here we have completed our chapter. Okay, now come to the copy work. I will tell you how to do the copy work. Okay, आपने किस तरह copy work करना है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको उसकी वो भी दिखा देती हूँ, पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, और आपको इंशाल्लाह PDF फॉर्म में भी वर्क मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू विच क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर कॉपीज़। ओके, हैव अ लुक, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सप्लेन वाई फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स। ओके, here is the answer. Okay, I will send you the PDF of this questions answer. Okay, मैं PDF वर्क सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप कर लीजिएगा, बट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आपने कौन कौन से करने हैं। What is nectar? What is pollination? Explain difference between cross pollination and self pollination. Okay, now turn the page, come to page number 18. Question number 1. Explain how. Question number 2. Okay, question number from page number 18, question number 2. Now come on page number 19. What is fertilization? Okay, describe the process of fertilization. These 2 questions. Now turn the page on page number 21. Question number 1, question number 2, question number 3. Okay, you have to do this question in your copy. Now turn the page from page number 22. You have to do question number 2, both A and B. Okay,
Okay, these are the questions which I have showed you and I have discussed with you. Do it in your copies. Okay, ये काम आपने अपनी कॉपी में करना है. इंशाल्लाह in next lecture I will discuss the answer of the further question which I have given you today, and I will also mention which question you have to in those question which one you have to do in your copy. Okay, मैं ये भी शो कर दूँगी कि इनमें से कौन सी questions आपने अपनी कॉपी में करने हैं. Okay students, one more thing students, आपने blue or black, there are few instructions for use blue and black markers only. Okay, to do your work. अपना काम करने के लिए ब्लू एंड ब्लैक मार्कर्स यूज़ करें. ठीक है, यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन. फॉर वर्क. ओके, आप ब्लैक और ब्लू मार्कर यूज़ करेंगे फॉर पुटिंग हेडिंग पुट करने के लिए. हर पेज पर डेट होगी. ठीक है, पुट डेट एंड डे ऑन एवरी पेज. हर पेज पे आप डेट और डे डालेंगे. ओके, और आप ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी वर्क यूज़ नहीं करेंगे. एंड हेडिंग मस्ट बी ऑन द टॉप ऑफ द पेज. हेडिंग आपने पेज के टॉप पर डालनी है. सपोज दिस इज़ योर कॉपी, यू हैव टू लीव 2 lines and on line number 3 you have to put the heading of chapter number 2. What is the name of chapter number 2? Reproduction in plants. ओके, आपने इस तरह हेडिंग डालनी है. हेडिंग को बॉक्स करना है. आई एम टेलिंग यू रफली, मैं आपको रफली बता रही हूँ. ठीक है, आपको जब मैं PDF सेंड करूँगी उसमें सब कुछ मेंशन होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह वर्क करना है. डेट डालनी है हेयर एंड हेयर यू हैव टू पुट द डे डालना है, डेट डालनी है. इस तरह आपने बॉक्स करनी है हेडिंग. देन पुट द हेडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है. देन आफ्टर डैट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह क्वेश्चन लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है. देन यू हैव टू डू द आंसर. ओके, आंसर लिखना है. इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, देन एक लाइन छोड़नी है, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालनी है. ओके, follow this pattern, use only blue and black marker. I am again telling you, अगर इस बार आपका इस पैटर्न पे वर्क नहीं हुआ, I will return your copies. I will not check your copies. Okay, I am clearly mentioning you that you have to follow this pattern. Okay, you have to put the heading like this. Okay, one more thing, maintain your index as well. Index में भी properly maintain करके भेजिएगा मुझे copies. Okay, this is all about today's lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह.